On loop based. Ma'am, output or error ones that Boolean wala. It is conditional on conditional or it is based on loops? Conditional. Okay, conditional. Conditional. Okay, let me check. Okay, I need to discuss with few points today also. The precedence and the that one is the shift operator. Acha, yes, ma'am. Okay. Just wait. मैम मेरा I'm just. Okay, ma'am. हाँ, बोलो. Anyone मैम is मेरा saying लूप something? का जो आउटपुट, यस मैम, लूप का जो आप आउटपुट दिए, मतलब जो एक क्वेश्चन दिए थे ना असाइनमेंट हाँ. लूप के लिए, मैम उसमें डाउट है मैम। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आप मैम ही सबका डाउट क्लियर करूंगी. हाँ. ओके ओके, ठीक है मैम, ठीक है। Just a minute. Just a minute. Just a minute. I'm just opening, sharing the Ma'am, screen. excuse me. Ma'am, output or error question, that PDF, that was only one PDF, right? I And think based you on have. only all the parts it was given, right? Yes. Yes, ma'am. Ma'am, you said the looping and before thing conditional ones. I was confused. You must have got three output questions. One is based on the operator. Initially, I have provided. Another one is based on the loop, and the one is based on the conditional statement. Ma'am, that output and error ones. It may be the combination of both output and the error. Yes, ma'am. It is a combination, but I only got one PDF. Which PDF you have got? Ma'am, it is all about conditional ones. You didn't get the I loop. got the conditional ones. I don't know about the rest of the questions. I have already shared with you. Have you not got it? Ma'am, let me check them. You check your Ma'am, mail. for every topic there was output and error questions. No. Output, you must have got the questions like in this output based questions on conditional, and one is output based question. Yes, ma'am. Ma'am, so only one PDF was shared, or like for different, for other topic it was also sent? For other topic also it was sent. One was for conditional statement and one was for the loop, ma'am. Two Yes. output questions. So two were there. Okay, thank you. And initially I have sent one based on operator. Three there. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Check the mail, you must have got it. Okay, ma'am. Just a minute, let me check the screen first. Okay, check whether the screen is visible to all of you. No, ma'am.
Yes, now it's visible. Yes, ma'am. Now it is visible. Okay. Okay. So these are the questions I have already shared with you earlier. Okay. So you are having doubt in which part? Someone is asking me doubt. Where you Yes, have ma'am. doubt? मैम लूप Ma'am, वाला मैम लूप वाला प्रॉब्लम मैम लूप वाला जो प्रॉब्लम था आपका लूप आउटपुट वाला में कहाँ जस्ट अ मिनट लूप में कहाँ पर डाउट है? मैम 6 नंबर क्वेश्चन प्रोग्राम नंबर 6 हाँ दिस वन ओके सो हियर व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पर क्या हो रहा है देखो तो मैम दो डाटा टाइप्स एक ही जगह पे डिक्लेयर हुआ है फॉर लूप में तो so वैसा नहीं here होता है in हाँ ऐसे नहीं होता है in for loop you have two different data type one is I another one is double X you can have a multiple variable declaration but with a single data type I equals to 0 J equals to 0 I less than 2 if you are going to do in this way it will be correct okay but if you are declaring two different data type then it will show you an error और यहाँ पर एक error message आएगा हाँ मैम एक्चुअली मैं ये डाउट था कि मैम एग्जाम पे जब ये वाला क्वेश्चन ये एक्चुअली आउटपुट क्वेश्चन लिखे हैं तो इसका एरर फाइंड करके हमें रेक्टिफाई करके राइट वाला प्रोग्राम लिखना है या खाली एरर it is your MCQ पे options will be there ओके ओके मैम okay you need to select the Okay, correct ma'am. option मैम no और एक मैम प्रॉब्लम नंबर 5 I am coming to this program check question number 4 and 5 so before I am discussing question number 4 and 5 try to remember few things operator precedence okay you need to remember the operator precedence your plus and minus is of higher precedence okay so the next set of precedence are your this one into division modulo then your binary plus minus उसके बाद तुम्हारा shift operator आ जाएगा next set of precedence are your shift operator next one is your this one less than greater than less than equal to greater than equal to उसके बाद क्या है equal to not equal to okay then उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा and this one is your bitwise and bitwise XOR उसके बाद है bitwise ये कौन सा ऑपरेटर है bitwise Not. not नहीं और okay not Yes, operator ma'am. Yes, ऊपर ma'am. Yes, रहेगा ma'am. okay this one is your logical and logical OR okay and at the last the lowest precedence will be of which operator assignment operator this one is your operator precedence ये तुम्हारा operator precedence है okay remember this one now here Ma'am. check the code हाँ मैम जो और लॉजिकल और है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो जैसे हम लोग जावा प्रोग्राम में लिखते हैं तो सिंपल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं लेकिन इसमें हाँ ये रिप्रेजेंटेशन पाइपलाइन है हाँ इसको पाइपलाइन बोलते हैं ये लाइन अच्छा okay पहले आप जो लिखे और अभी जो लिखे वो दोनों सेम है वो दोनों सेम है इन द कीबोर्ड यू मे फाइंड इन सम केसेस दिस वे और इन दिस वे ओके मैम okay now check here now come to the question for int I equals to 0 true and plus I less than 2 I plus so now I का वैल्यू कितना है my value for I here is 0 now यहाँ पर देखो हाँ यहाँ पर true है and है plus है less than है so which operator is having the highest precedence देखो तो plus यहाँ पर plus so I will be updated to कितना हो गया 1 1 उसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंस किसका है
Comparison operator. Less than, हाँ. So 1 less than 2. Condition here is True. true. ये true है. True and true. True and true क्या होगा? True. True. True and Ma'am? true is true. So what will be the value of I? I में कितना है तुम्हारा? 1. 1. So यहाँ पर print कितना होगा? 1. 1. Then I plus plus. So I value will be updated to 2. 2. Now come to this point. यहाँ पर plus plus I मतलब 2 plus plus कितना हो जाएगा? Plus plus 2. It will be 3. 3 less than 2. Condition क्या हो गया? False. 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 True and false क्या हो जाएगा? False. 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 It will come out of the loop. Output कितना आएगा? Only 1. Only 1. Check. Okay. Check the output. Control C. Here I am just doing it. मैम ये जो प्लस प्लस आपने लिखी है वो प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है? ये प्री इंक्रीमेंट है. आई के बाद अगर प्लस प्लस होता तो क्या होता? नहीं Post- मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ. वो जो ऑपरेटर के पास आप लिखे हैं ना, पूरा लिस्ट दे हैं, वो जो पहला वाला हाँ, ये प्री पोस्ट दोनों है. ये प्री पोस्ट दोनों है. दोनों का प्रिसिजन सेम है. हाँ. ठीक है. ये देखो. आई विल डू द चेंज हियर. कंट्रोल भी. देखो आउटपुट कितना आ रहा है. आउटपुट कितना आया? 1. Now come to the next question. Now come here. यहाँ पर boolean b equals to कितना है? False. False. If boolean b is false, I equals to 0. Now plus plus I का वैल्यू कितना हो गया? 1. 1 less than 2. Condition here is True. true. b में कितना है? False. False और true. What will be the value? True. ये true हो गया. True हो गया तो आप I print होगा. I कितना print होगा? 1. 1. I plus plus. I plus plus मतलब I कितना हो गया है? मैम नीचे भी है. b is equal to not b. हाँ. b equals to not b. b में कितना आ गया? True. True. यहाँ पर I plus plus I में कितना अपडेट हो गया? 2. 2. Now plus plus I मतलब plus plus 2 कितना हो जाएगा? 3. 3 less than 2 क्या हो गया? False. b में अभी क्या है? True. True false क्या हो गया? True. True false is true. So what is the value in I? 3. I में कितना है? 3 है. Again b equals to not b. अभी b में कितना आ गया? False. False. I value will be updated to 4. 4. अभी plus plus I मतलब 5. plus plus 4. 5 less than 2. Condition False. false. अभी b में क्या है? False. 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 False होगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1, 3. 1 and 3. Check it. What is the output? 1 and 3. Okay. मैम ये जो बीटवाइज एंड और बीटवाइज और है, ये कौन कौन से डाटा टाइप पर ऑपरेट हो सकता है? मतलब वहां पर हम इन डबल कैरेक्टर वो ओनली हाँ. यस वेरी गुड क्वेश्चन. ये जो शिफ्ट ऑपरेटर है, ओके, एंड है और है, इट विल वर्क ऑन इंटीजर. बुलियन नहीं होगा. बुलियन वेरिएबल में यहाँ पे काम कर रहा है ना. हाँ इट विल वर्क बुलियन और इंटीजर. ओके, दोनों है ना, बुलियन और इंटीजर. हाँ. But this shift operators, this will work only on which value? Integer. We will come to one question right now. मैम कैर के साथ काम करेगा? हाँ, कैर के साथ काम करेगा क्योंकि कैर में क्या स्टोर हो रहा है? ये तुम्हारा यूनिकोड वैल्यू. यस मैम. हाँ, it will work. Okay. But float and double के साथ काम नहीं करेगा, string के साथ काम नहीं करेगा.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, come to the next question. ये वाला समझे हो ना? Question number 7. I think I have discussed it. Yes, ma'am. Okay. So I am just giving the highlighted point. यहाँ पर आंसर कितना आएगा वो बताओ तो in question 10. मैम नो आउटपुट। मैम उल्टा आएगा, जैसे कि 90 नहीं 80 90 नहीं आएगा. 70 I में कितना है तुम्हारा? मैम नॉट आउटपुट, नो आउटपुट मैम। What is the value at I? I is 100 100 less than equals to 0. false. तो क्या होगा? It will come out of the loop. मैम इसका वैल्यू चेंज करके मैं राइट कर। हाँ? Do you saying something? मैम एक्चुअली मुझे लगा कि एरर वाला है बोल के उसको रेक्टिफाई करके राइट वाला प्रोग्राम लिख के नहीं नहीं वो नहीं, डाल के निकाल तुम्हें जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, you will have some options will be there. You check the options, okay? Accordingly, you are going to write the answer. Don't rectify the code, okay? मैम कुछ 11 MCQ का मॉडल क्वेश्चन बता दें, मतलब एक दो, मतलब MCQ का कैसे होगा ऑप्शंस के साथ। Just a minute. Option के साथ देखना. You want to check it, okay? Okay, I'm just giving you one sample here. Now come to question number 11. Okay, so here I will give you some option. Let option 1 here will be hi, then hello gigs. B, compile time error. Here the C, infinite loop. Okay, and D, here it will be high. So what will be the correct option? मैम ए। मैम ऑप्शन ए। हाँ, here you are going to check on option A. So in this way you are going to get the questions. मैम लेकिन फॉर लूप में किसी भी लूप में ये लिख सकते हैं मैम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन ये लिख सकते हैं। You can write yes. You can write yes. Here the check int I. Let I have initialized I here. Now here I am writing hi. Now for condition checking, let I will not provide any value I plus plus. No, नहीं यहाँ पर नहीं करेंगे तो it will go for infinite loop. Let I less than 2. Okay, so remove this value. तो यहाँ पर क्या आएगा देखो? What will be the output? देखो, what is the output here? Hey, hello. Hello. Even though your condition is false, ये condition अगर तुम्हारा false भी होगा, the loop will executed at least once. I let here my I value is 1. Here I am using 1. Now I will run the loop. Now condition क्या हो गया? 1 less than 1 क्या हो गया? False. False. So here I value will be yes. Ma'am, can you please repeat what did you say? I just disconnected. Okay, here whenever I am going to initialize a variable beforehand, in the for loop, if in the initialization part I am writing system.out.println, that statement will be executed at least once, even if your condition is true or your condition is false. Now here in this case my condition here will be, in the first case it will be false हो जाएगा. लेकिन क्या होगा? It initialization part में as you have written this code, ये program run होगा and it will give you the output as high. You check it here, it is giving me high. Now if my condition here is 3, so यहाँ पे output क्या आएगा? High एक बार आएगा. Hello, it will be printed for how many number of times? 2 times. 2 times. Hello will be printed for 2 number of times. Check it.
Hi, hello, hello. Okay, even if I'm going to write the update statement here, okay, and here I'm going to write one system.out.println. Welcome. Then also what will happen? It will not show error. The loop will execute and this welcome will also get printed. क्योंकि तुम्हारा update statement कहाँ दिए हो? I++ you have written here. Okay. If you don't have this update statement, then the loop will run for how many number of times? Infinite time. Then the loop will run for infinite number of times. Okay. And another thing, remember this, in the for loop, the condition part will never get a integer value. यहाँ पर तुम कभी integer value नहीं दिए होंगे. If it will be having integer value, then it will show you an error. यहाँ पर क्या आ जाएगा? Error आ जाएगा. Error आ जाएगा. So it will always take a boolean value. If here I am writing true, then it is correct. और ये कितने बार execute होगा अगर मैं true लिखती हूँ तो? Infinite times. It will go for infinite number of times. Okay. Now here, even though I will update I++, every time the answer is true, and it will run for how many number of times? Infinite times. Okay. If you are not false. 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 It will show you error. Okay. In false, it is not. समझ में नहीं आया ये वाला. It will not work for the false. If you are going to write the boolean condition here as false, okay, अगर true लिखोगे, the loop will run for how many number of times? Infinite time. If you are going to write the false, it will be showing you unreachable code. क्या है error? अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन जो कि false ही होगा, तो भी ये error दिखाएगा क्या? मतलब I greater than 3. Greater than 3. No error. Because here it is checking some condition, right? Yes. मैम मतलब अगर कंपाइलर को डायरेक्ट वैल्यू मिला तो वो फॉल्स बता देगा जैसे पिछले केस में हुआ, लेकिन इसमें वेरिएबल है तो उसको रन करने की जरूरत है. हाँ, यहाँ पर वो केस में यहाँ पर क्या हो रहा है? कोड चेक हो रहा है. यहाँ पर अगर फॉल्स लिख देते हो, वो क्या हो रहा है? कोड अनरीचेबल हो जा रहा है. इट इज शोइंग यू अनरीचेबल कोड. Okay, and if you are writing true means my boolean value is true. The loop will run for how many number of times? Infinite times. Remember this point, okay? मैम अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो वो जो अपडेट स्टेटमेंट है ना, वहाँ पे जो प्रिंट वेलकम वो प्रिंट होगा? नहीं, वो कुछ प्रिंट नहीं होगा. The code will be unreachable. नहीं, मतलब कंडीशन अगर फॉल्स होता है, मतलब जैसे कि I greater than 3. नहीं, अगर कंडीशन फॉल्स होता है, if I greater than 3, if the condition is false, this statement will be executed. ये execute नहीं होगा, welcome execute नहीं होगा. अच्छा, तो because अपडेट स्टेटमेंट कब होगा? जब तुम्हारा लूप चलेगा. when your condition is true, your I value will be updated. तो ये अपडेट स्टेटमेंट, ये कंट्रोल कहाँ आता है? ये देख लो. How the control is coming, you will get a clear picture. Here I am writing I++, and let here my I value is less than 3. System.out.println I. Okay, and after this statement, here, I think you will know the difference. Or take a variable here, C equals to 1, and check here C. Now let this value is C. Hi, यहाँ पे print हुआ. This part here is I का value कितना है? What is the value of I initially? 1. 1.
So it is printed, कितना प्रिंट हो गया 1, उसके बाद क्या आ गया हेलो हेलो हेलो, ठीक है। फिर उस यहाँ पर तुम्हारा C, व्हाट इज द C वैल्यू? C वैल्यू इज अपडेटेड टू 2 प्रिंट हो गया। ओके, अगेन द लूप विल कंटिन्यू। यहाँ पर I का वैल्यू कितना अपडेट हो चुका है? 2 अपडेट हो चुका है। यस मैम। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लूप, आफ्टर ये C प्रिंट होने के बाद I का वैल्यू 2 अपडेट हो गया है। So if I am going to write println I, what is the value of I here? 2 I का वैल्यू कितना है? 2 है। अगर यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देखो system.out.println I, you check here, देखो यहाँ पर कितना आ गया? हाई आ गया। I का वैल्यू कितना है? 1 है। हेलो है, C अपडेट होके 2 हो गया है। C के बाद भी I का वैल्यू कितना है? What is the value of I? 1 1 है। I का वैल्यू कब अपडेट हो रहा है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस println स्टेटमेंट। हाँ Ma'am, here we have written, you have incremented C++. Then next when we print C, then we should get the value as 1 first. Then the value will be the value of C will be changed to 2. No, it is not 1. You will not get 1 because you are not initializing. Here, do I have written int x equals to C++ लिखी हूँ क्या? No, ma'am, no. I have written what? I have written only C++. Yes, ma'am. Okay, so when you are going to write this statement, then it will show the updated value. Are you getting my point? Okay, if you are going to write in this manner, so but when if यहाँ पर C++ के बाद अगर प्लस प्लस I होता तो क्या होता? C का जो भी वैल्यू है that will be get added with I. Yes, ma'am. उसके बाद वो C का वैल्यू, हाँ उसके बाद वो अपडेट होता। बट as it is written C++, वो क्या होगा? It will only update the value, जो updated value है it will display only that value. Are you getting my point? No, ma'am, I'm not able to understand. Just a minute. Okay, now suppose here I am just putting it in all these things in a comment line. Here, let I have a value int x equals to 5. Okay, now system.out.println, here I am going to do x plus plus. So what is the output? You check here. Output कितना आ गया? 5. 5 आ रहा है because it is ये क्या हो रहा है? It is just printing the value of X. Okay, here I am writing x plus plus. Now system.out.println x. Now what is the value here? 6. So यहाँ पर तुम println statement कब लिख रहे हो? After the increment operation? Yes, ma'am. Okay, as you are updating the x value, you are writing the println statement after the increment, post increment of operation. So what will be the x value? X में अभी कितना store हो चुका है? 6. So here it is showing you. Oh, okay, ma'am. No. But if we okay. And here what is happening? If I am writing here system.out.println x plus plus, तो यहाँ पर वो पहला कौन सा वैल्यू को ले रहा है? It is taking considering, पहले क्या आ रहा है? वेरिएबल आ रहा है ना ऑपरेटर आ रहा है? Variable. So it is just printing the value present in the variable. So x में क्या वैल्यू है? 5. It is printing 5. But if it is written as plus plus x, then what will be the value? 6. It will be printing 6. Okay. So यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ है? C plus plus y? Yes, ma'am. If you will be doing any operation over here like x plus equal to x or something, then it will take the initial value.
हाँ, it will take the initial value. Okay. मैम हाँ, अगर हम वो जो x प्लस प्लस के जगह मतलब c इज इक्वल टू x प्लस प्लस लिखते हैं तो पहले c में x का वैल्यू असाइन होता है या पहले इंक्रीमेंट होता है? to INT, very good question. C equals to, अब बताओ यहाँ पर C में कौन सा वैल्यू असाइन होगा? पहले वेरिएबल क्या है? 5 है। x है, हाँ x है, x का वैल्यू कहाँ असाइन कर देगा? C में असाइन कर देगा। हाँ ओके, उसके बाद वो क्या करेगा? x को इंक्रीमेंट करेगा। तो C में कितना आ गया? 5। अच्छा ठीक है, x में कितना आ गया? 5। C Yes, में ma'am. 5 और x में 6. 6. Okay, if I am going to write here x equals to x plus plus. Okay. So here, if I am going to write int x equals to x plus plus, so what will happen? It will store 5 first, right? So here, what is the value of x now? So x में क्या store होगा? x 5 है, so 5 value will get stored in X x. So the output here will be 5. 5. Now, if my for loop, now check. Now tell me the output. Int x is equals to 0, x is less than 5, and I am writing here x equals to x plus plus. What will be the output now? What is the output? Who can tell me what will be the output for this statement? मैम 0 0 0 0 इनफिनाइट टाइम जा रहा। What? 0 0 0 इनफाइनाइट टाइम जाएगा, क्योंकि एवरी टाइम x में क्या सेट हो जाएगा? 0। Every time the value in x will be set to 0. ये देखो. Okay, are you clear? Yes. Okay. So these are the fundamental things you should remember. Should I move to the next part? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. Now here, this question, can you do this question? This one is the easiest one. Question number 13, string s equals to prints x equals to 0. So here s dot char at x. So char at x मतलब क्या हो जाएगा? What is the Char at value zero. at x? 0. Zero. Char at 0 में मतलब print क्या करेगा? f. F X will be updated. X हो गया कितना? 1. 1 less than 2. It is true. Then println char at 1. So char at 1 में क्या है? R. R. It will be printed R. X value will be updated 2. 2 less than 2. Condition here is? false। So if the condition here is false, the output will be F and R R. अब देखो ये while true है, it will go for how many times? infinite times। Infinite times. Okay. These are the fundamental things. You remember this part. मैम क्वेश्चन नंबर 60 बताएंगे जरा? ये वाला? नहीं मतलब मैम 66 Question number 16. मुझे ऑपरेटर्स का भी एक दो बताना है. Question 60. This one? नो मैम, ये लूप नहीं मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट का पूछ रहा था, सॉरी। Question 60. Okay.
दिस वन। यस मैम। यहाँ पर ना थोड़ा मैम क्वेश्चन में गलती है, ये ना x एंड y नहीं होगा, ये टाइपो एरर हो गया है, ये नंबर 1 एंड नंबर 2 होगा। ओके, एंड इन द स्विच केस दिस एंड ऑपरेटर विल वर्क। आई विल शो यू द आउटपुट। यहाँ पर आएगा आउटपुट, क्या आएगा पता है तुम्हें? 101। सो इट विल एंड ऑपरेशन है, सो 101 है, सो इट विल ये जो आप सिर्फ एंड ले है वो उसको बाइनरी करके ही करेगा ना? हाँ, ये बिटवाइज एंड है। व्हाट उसका एंड करने से 101 आ रहा है, मतलब बाइनरी से फिर से डेसिमल करने के बाद 101 ही आएगा। हाँ, 101 ही आएगा। एंड हियर द आउटपुट विल बी 101 111 011 एंड ये डिफॉल्ट भी प्रिंट होगा। ओके मैम, यस आई गॉट इट। Got it? So here ये typo error हो गया है। This one will be number 1 and number 2. ओके मैम। मैम ये वाला प्रोग्राम फिर से थोड़ा बोल देंगे 60। हाँ, check it। अच्छा हो रहा है, थोड़ा बोल दीजिए। हाँ, ये देखो, I'm just copy paste में कर लेती हूँ, otherwise I will minimize the screen। ये देखो, this part। Is my board is visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now check the question। यहाँ पर क्या दिया गया है? नंबर 1। ओके, नंबर 1 is equals to 111 and number 2 is equals to कितना है? 101। Now if I am going to perform the AND operation, यहाँ पर मैं क्या करूंगी? Switch number 1 एंड नंबर 2 दोनों को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी। सो नंबर 1 में क्या है? 111 है, इसका तुम लोग क्या करोगे? आज इट इज व्हिच नंबर? इंटीजर नंबर है, इसका तुम बाइनरी निकालोगे। फिर नंबर 2 का क्या निकालोगे? बाइनरी निकालोगे। ओके, देन यू आर गोइंग टू परफॉर्म व्हिच ऑपरेशन? बिटवाइज एंड ऑपरेशन। Yes, ma'am. बिटवाइज एंड ऑपरेशन करने के बाद तुम्हारा आंसर 101 आएगा। तो जब भी तुम एंड ऑपरेशन करोगे, दो नंबर को, जो छोटा नंबर होगा ना, द मिनिमम वैल्यू, यस मैम, दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली द आंसर। वो हमेशा आंसर ही रहता है। चेक कर लो हियर, आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। int a equals to 9, int b equals to 10, system.out.println a and b। Okay, so here I will do a and b। Now when I will run the code, here the तुम्हें यहाँ पर करना पड़ेगा। Okay, 111। In the most cases you got the value, and in few cases you may not click, so you need to do it 101. Okay, and here if 12 11 and this one is, let is my value here is 10, so here the value will be 10. In the most of the cases you will click, but in few of the cases you may not click. Okay, so तुम्हें यहाँ पे conversion better, you go with the conversion, binary को लो, एंड ऑपरेशन करो, देन यहाँ पर स्विच 111 एंड 101। सो द आउटपुट हियर यू आर गोइंग टू गेट अस 101 आएगा। तो 101 आएगा, तो विच केस इट विल सेटिस्फाई? केस 101। केस 101। सो हियर द आउटपुट विल बी, आउटपुट क्या आएगा तुम्हारा? 101। देन as you don't have the break statement, yes, it will do 111, then break नहीं है तो 010 हो जाएगा, फिर ब्रेक नहीं है, इट विल प्रिंट द डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, अगर और ऑपरेशन होता है एंड की जगह, एक्सक्यूज मी मैम, यस, डिफॉल्ट वैल्यू मतलब क्या प्रिंट करेगा, जरा आप बोल देना प्लीज। डिफॉल्ट वैल्यू ये देखो, यहाँ पर एरर आएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है? एक्स एंड वाई। नंबर 1 नंबर 2 लेते हैं। हाँ, यहाँ पर नंबर 1 एंड नंबर 2 होता है, सो नंबर 1 एंड नंबर 2 होगा, तो कितना आंसर आ जाएगा? 101। Okay. And another thing, remember, if and के जगह अगर और ऑपरेशन होता, तो what will be the value? It will printing from
1 1 1 1 1 1 यहाँ पर आएगा 1 1 1 देन 0 1 0 देन दिस वैल्यू। मैम मैम डाउट था ये केस में कौन कौन से डाटा टाइप हम ले सकते हैं? इसमें तुम लोग इंटीजर ले सकते हो एंड कैरेक्टर ले सकते हो। स्ट्रिंग का भी मैम, स्ट्रिंग का भी एक क्वेश्चन है एक स्ट्रिंग का, सो कुछ स्ट्रिंग का देखो स्ट्रिंग काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। मैम कर रहा था। कर रहे हैं मैम। तो वो लेगा स्ट्रिंग लेगा बट फ्लोट एंड डबल नहीं लेगा। ओके, इट विल नॉट एक्सेप्ट फ्लोट एंड डबल। बुलियन मैम? बुलियन लेगा। केस 0 केस 1 देख लेते हैं। इट विल टेक int number 1 equals to 101. Okay, number 2 equals to 111. So instead of x and y, here I will write number 1 and this value is number 2. Here a semicolon. What is the error? And find and is undefined. मैम एक ब्रैकेट कम है शायद। Okay. Number 1 and number 2. यहाँ पर एक काम करती हूँ। I will put a bracket here. Okay. अगर यहाँ पर तुम विदाउट ब्रैकेट लिखते हो, इट विल टेक इट एज सम अदर वैल्यू। ओके, आज हियर कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है? प्लस ऑपरेटर। सो इट विल नॉट आइडेंटिफाई। ओके, सो नाउ लेट आई विल रन द कोड। देखो आउटपुट कितना आ रहा है एंड ऑपरेशन में। इट इज प्रिंटिंग 101 111 010 and the AND operation. Okay, and if I will put a OR operator here, OR में आंसर कितना आएगा? So it is starting printing from 111 010 and this value. Okay, मैम जो एडिशन ऑपरेटर एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रिसिशन किसका है? सबसे ज्यादा मतलब किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, मतलब प्रिसिशन किसका ज्यादा है? प्रायोरिटी। हाँ, एंड का पहले आएगा, उसके बाद XOR आएगा, उसके बाद और आएगा। नहीं मैम, बिना ब्रैकेट का बोल रहा हूँ मैं। अगर ये जो आप तो ब्रैकेट दिए हैं, अगर ब्रैकेट नहीं होता है तो एक जनरल क्वेश्चन में जनरली मैं बोल रही हूँ एंड का पहले आएगा और का बाद में आएगा। और ये प्लस एंड के बोल रहे हो तो ये प्लस देखो, ये क्यों एरर आ रहा है बता रही हूँ। ये क्या है? प्लस का मतलब कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर है। हाँ, हम लोग क्या पढ़े थे? स्ट्रिंग के बाद अगर कोई इंटीजर वैल्यू लेता है वो उसको क्या कंसिडर करेगा? स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर लेकिन क्या आ गया है? एंड ऑपरेटर आ गया है। एंड ऑपरेटर किसके लिए काम करता है? इंटीजर। बिटवाइज ऑपरेटर विल वर्क ऑन इंटीजर। बिटवाइज, यस मैम। इंटीजर तो ये क्या हो गया? अभी ये स्ट्रिंग हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। यस मैम। ओके, इफ ये सब याद रखो। इफ योर क्वेश्चन देके आंसर देना। अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होगा तो ये क्या होगा? एरर आएगा। अगर ब्रैकेट है तो आउटपुट आएगा। मैम इसको मतलब एमसीक्यू में कैसे हो सकता है, जरा बोलेंगे? मतलब ये दिया होगा, देखना ऑप्शन चेक कर लेना। व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल।
ओके एक होगा एरर दिया होगा, सो यू विल क्लिक ऑन द एरर पार्ट. मतलब जैसे कि सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, ऐसा कुछ नहीं हाँ, तो अगर एरर दिया होगा, you will click on that one. Okay. Ma'am, if in this case, if we have two ands, then मतलब दो and sign, then लॉजिकल एंड Logical and हो जाएगा. If I will put two and, then error आएगा. Because logical operator हम लोग कहाँ use करेंगे? When we are comparing two लॉजिकल एंड का टू स्टेटमेंट जब कंपेयर होगा. ओके okay, okay, ma'am. सो हियर इट इज बिट बाय एंड. मैम वो जो डबल एंड है वो हम किसी दो कंपैरिजन को भी कंपेयर कर सकते हैं ना? हाँ, दो कंपैरिजन को ही कंपेयर करेगा. यस मैम बुलियन के साथ काम करेगा ये? स्विच तो हाँ ये वाला देख लेते हैं. बुलियन. सो हियर चेक कर लो बुलियन एक्स. सो हियर क्या लोगे एक्स. सो केस क्या आ रहा है? एरर आ रहा है स्विच के एरर आ रहा है. इट विल ओनली वर्क विथ इंटीजर और कैरेक्टर. ओके केस में भी मैम अगर कोई वेरिएबल कंपेयर करके करे तो तुम्हें केस देना है ना. केस ट्रू फॉल्स हम लोग नहीं लिख सकते हैं. वी कैन राइट ट्रू और फॉल्स. केस का वैल्यू वी कैन गो विथ 0 1 2 3 4 और वी कैन गो फॉर ए बी सी डी. और यू कैन यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा है एज इट इज जावा, तो स्ट्रिंग ले रहा है तो ए बी सी सी डी ऐसे हो सकता है. कैरेक्टर जब हम इनपुट करते हैं मतलब केस ए लिखते हैं तो सिंगल कोट में लिखना जरूरी है या सिर्फ ए लिख सकना है वहां पे? सिंगल कोट इधर सिंगल कोट में लिखोगे नहीं तो डबल कोट में लिखोगे. ये तो एरर आएगा. ठीक है. और एक चीज है बता दो. यस मैम. I think we have few minutes left with our class. One of the important thing अभी तक मैं नहीं बताई हूँ. So come with the याद है तो सबको shift operator. यस मैम. Do you Yes. remember the shift operator? Yes, Okay, it is one. It is one of the most important thing. याद रखो. I will just brush it up on the shift operator. Clear? Now in left shift क्या होता है? You are just here. If it is x, here it is 2. Then you are doing 2x into 2 to the power n है तो n करते हो. यस मैम. x into 2 to the power n. पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों के लिए यही फॉर्मूला यूज करते हो. माइनस डाल सकते हो. Okay. Yes, In case of your right shift operator, what you are doing? X Divide. this value is n. 2 to X the by power 2 to n. power s n. floor function. Floor function. Okay. Now if a negative number is there, अगर negative number है ध्यान से करना. Okay. Try to avoid this function. नेगेटिव नंबर है तो वो नंबर का क्या करोगे? बाइनरी में कन्वर्ट करना. कन्वर्ट इट टू बाइनरी. देन फाइंड व्हाट? 2's Two's complement. complement. 2 इज कॉम्प्लीमेंट. देन उसको क्या करना? राइट शिफ्ट करना. ओके. Okay मैम. Okay, Now ma'am. if it is asked you to write shift in this way, integer dot max int. अगर integer dot max int दिया रहेगा तो क्या करोगे? We'll take that value of integer dot maxin and then we will do according. What is the value of integer dot max int? Do you all remember? यस मैम. क्या है बताओ तो. मैम जो लास्ट वैल्यू होती है उसके बाद अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो पीछे चल जाता है एकदम लास्ट No, में माइनस याद में. रखो if integer dot max int दिया रहेगा and you need to shift it to 28 bits. तो integer dot max int को डायरेक्टली ये फॉर्मूला और यूज मत करना. डोंट अप्लाई दिस फॉर्मूला. यू कन्वर्ट डायरेक्टली राइट इन द बाइनरी फॉर्म. बाइनरी फॉर्म क्या होगा? पहले में एक 0 आएगा. ओके. फर्स्ट बिट विल बी 0. ये क्या है? तुम्हारा पॉजिटिव नंबर आइडेंटिफाई करता है. यस मैम. And rest of the bit will be
सारा बिट क्या होगा? 1. 1. 1. रेस्ट ऑफ द बिट विल बी 1. याद रहेगा? Yes, ma'am. ओके, फॉर शिफ्टिंग आई एम टेलिंग फॉर शिफ्टिंग. अगर इंटीजर डॉट मैक्स मीन वैल्यू दिया रहेगा, ये तो इंटीजर डॉट मैक्स हो गया. इंटीजर डॉट मीन दिया रहेगा तो क्या होगा? पहला बिट क्या हो गया? 1. बाकी सारा बिट क्या होगा? 0. 0. ये दो याद रखना, ठीक है. आई एम कमिंग टू दिस पार्ट. यहाँ पे देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटीजर टू बाइनरी string integer dot max value. Now if I will run the code, Brackets are there. हाँ ये देखो, ये कितना 1 है? काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. ओके, पहला बिट क्या है? 0 है. बाकी सारा बिट क्या है? 1 है. एंड इफ इट इज मीन वैल्यू, देखो 0. 1 है. बाकी सारा बिट क्या है? 0 है. तो पैनिक मत होना. अगर याद नहीं है वे तो ये करना. अच्छा, और एक चीज, अगर दिया रहेगा तुम्हें कितना बिट शिफ्ट करना है? 28 बिट. इफ यू नीड टू शिफ्ट 28 बिट, 28 बिट लेफ्ट शिफ्ट करोगे, नहीं तो राइट शिफ्ट करोगे. कितने बिट से करोगे? 32 से. 32 से जस्ट माइनस कर देना. 4. ओके, 32 माइनस 28. अगर मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट मतलब कहाँ जाएगा? लेफ्ट की ओर जाएगा और यहाँ पर लेफ्ट की ओर जाएगा, नहीं तो राइट शिफ्ट ले लो. इफ इट इज द क्वेश्चन इज राइट शिफ्ट में ही आएगा आंसर. राइट शिफ्ट ले लो. तो राइट शिफ्ट लोगे तो क्या होगा? राइट की ओर जाएगा. यस मैम. ओके, सो 32 माइनस 28 हो गया. तो कितना बिट रह गया तुम्हारा? 4. लास्ट में 3 वंस रह जाएगा. और यहाँ पे 0 है. मीन्स हाउ मेनी बिट आर देयर? 31 वंस आर देयर. 31 माइनस 28, तो कितना 1 रह जाएगा लास्ट में? 3 वंस. सो 3 वंस को बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा. द क्वेश्चन, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है आउटपुट बेस्ड में. दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन. Yes, ma'am. You have given this question. मैम मिनिमम वैल्यू नेगेटिव होगा ना इंटीजर डॉट मिन वैल्यू का? हाँ, ये देखो, ये क्या हो गया तुम्हारा? ये मीन हो गया. सॉरी, ये मैं मैक्स नहीं ली हूँ. You have given max value. हाँ, मैक्स फॉर मैक्स वैल्यू. मीन में नहीं है, बट ठीक है. मैक्स वैल्यू मीन का भी बताऊंगी. ये देखो, मैक्स में कितना आ गया? 7 आ गया. कैसे आया? ये कितना वंस है? 31 वंस है. टोटल नंबर ऑफ 1 इज 31. तुम शिफ्ट करोगे, कितना बिट शिफ्ट होगा? 28 बिट शिफ्ट होगा. सो 31 माइनस 28 कितना हो गया? 3. तो लास्ट में कितना बिट रह रहा है? 3 बिट. 0 1 2. तो ये कितना हो गया? 2 to the power 2, 2 to the power 1, 2 to the power 0. 4 plus 2 plus 1, it is 7 आ रहा है. मैम लेफ्ट से बताना जरा कैसे, मतलब सेम. लेफ्ट में ये फॉर्मूला डाल दो. तुम्हारा लेफ्ट में फॉर्मूला डालोगे, तुम्हारा क्या होगा? आई थिंक यू विल गेट
मैं राइट में डालेंगे तो गलत हो जाएगा क्या? लेफ्ट में नेगेटिव में आंसर आएगा। क्यों मतलब नेगेटिव में? हाँ बता रही हूँ हैव पेशेंस। लेफ्ट में करोगे, अब 31 बिट कहाँ शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट को हो रहा है। लेफ्ट को हो रहा है, तो यहाँ पर कितना 1 आ गया? कहाँ पर मैं? ये और सारा जो- बिट लेफ्ट, हाँ लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा ना। हाँ ऑल लास्ट द को बिट विल बी शिफ्टेड टू लेफ्ट। तो हम्म, लेफ्ट को शिफ्ट हो गया तो कितना बिट रह जाएगा? 3 1s रह जाएगा। Yes, ma'am. बाकी सारा क्या हो गया? जीरो 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया है तुम्हारा? नेगेटिव वैल्यू आ गया है। नेगेटिव वैल्यू आ गया है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, ओके मैम एक और डाउट था, वो जो अनसाइंड राइट शिफ्ट है उसका कैलकुलेशन तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा क्या? मतलब हाँ याद रखो, अनसाइंड राइट शिफ्ट है और एक रह गया है। अनसाइंड राइट शिफ्ट है तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारा साइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, नेगेटिव नंबर है, तुम्हारा जो एमएसबी बिट हमेशा 1 रहेगा। जितने बार भी तुम लोग राइट को शिफ्ट करो, ठीक है, एमएसबी बिट क्या रहेगा? 1 रहेगा। 1 रहेगा। बट इन केस ऑफ योर अनसाइंड राइट शिफ्ट, अगर नेगेटिव नंबर है, शिफ्टिंग कर रहे हो, ये जगह क्या हो जाएगा? राइट शिफ्ट करोगे, यू विल डू राइट शिफ्ट, तो ये एमएसबी बिट्स ब्लैंक आ रहा है, ठीक है, ब्लैंक आएगा, मतलब यहाँ पर क्या डालोगे? 0. 0 डालोगे। हाँ, तो मैम जैसे कि यहाँ पर लास्ट में 2 1s रहता है, तो इसको कैलकुलेट करना मतलब देखो तुम्हारा ये वैल्यू है, मुझे इसे राइट शिफ्ट करना है, ठीक है, ये मेरा नेगेटिव नंबर है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बिट शिफ्ट करना है, तो ये क्या हो गया? दिस इज माई वैल्यू, ये स्पेस क्या हो गया? 0 हो गया। ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये प्लेस क्या हो गया? वैकेंट वैकेंट हो गया है। अगर ये अनसाइंड होगा, यहाँ पर क्या डालोगे? 0 अनसाइंड है तो क्या डालोगे? 0 0 डालोगे। अगर साइंड होगा तो यहाँ पर क्या रहेगा? 1 रहेगा। 1 1 रहेगा। दिस इज द डिफरेंस। हाँ बस नहीं मैम, बस ये पूछ रहा था कि इसको अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर देना है तो मुश्किल होगा ना थोड़ा? हाँ मुश्किल होगा। तो ओके वहाँ और पर एक चीज, हाँ बोलो। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे मतलब करेंगे? ऑप्शन देखना है, जो बड़ा नंबर होगा देखना एक ही दिया रहेगा। ओके ओके, देखना, यू चेक द ऑप्शंस देखोगे तुम्हें अपने आप आंसर्स पता चल जाएगा। ओके ओके, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तुम्हारा शिफ्ट ऑपरेशन है। नाउ आई विल डू हाउ मेनी बिट शिफ्ट? 32. 32 बिट शिफ्ट करोगे। याद रखना जो ये वैल्यू है दैट विल बी ऑलवेज द आंसर। ओके, क्यों? हाँ, 32 बिट। हाँ, if it is 32 bit, you are going to shift x with how many bit? 32 bit. The output will always be X. लेफ्ट शिफ्ट करो, राइट शिफ्ट करो, बिकॉज बेसिकली 0 शिफ्ट होता है, ये फॉर्मूला है। 32 mod 32, what will be the remainder? 0. 0, तो कितना बिट शिफ्ट हुआ? 0 bit 0 bit. So what will be the answer? The number itself. मैम नेगेटिव नंबर लेंगे तो भी सेम ही रहेगा? तभी हाँ सेम आएगा। और एक बात, अगर तुम्हारा 34 बिट शिफ्ट करना है, you need to shift for how many bit? 2 bits 34, तो 34 mod 32 mod 2. करना, तो what will be the value? 2 तो कितना बिट शिफ्ट करोगे? 2. 2 2। bit इधर लेफ्ट शिफ्ट करो, नहीं तो राइट शिफ्ट करो, कितना बिट होगा? 2 बिट। ये वाला चीज याद रखना। यू मे गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। ओके, ग्रेटर देन 32। यस गॉट इट। ओके मैम हाँ। लूप से क्वेश्चन में डू वाइल से आएगा क्या? हाँ डू वाइल भी आएगा। देखना आउटपुट बेस में डू वाइल्स का भी क्वेश्चंस है। मैम शायद हम लोग का डू वाइल नहीं हुआ है। नहीं वन दिन हुआ था। आई हैव डिस्कस्ड डू वाइल। ऑपरेटर थोड़ा सा हुआ है। दिए हैं आउटपुट टेस्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, 2 ही तो मिला है। ऑपरेटर नहीं मिला है, 2 ही आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। Okay, मैम I will send ऑपरेटर it का again. नहीं मिला। नहीं मिला है। ओके,
I will send it right now. Okay. Okay, ma'am. You practice all the questions. Thank you all. Thank you, ma'am. All the best for the exam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.